Hello, good morning, dear students. So, after doing numericals of Nernst equation in the electrochemistry, we are going to talk about concentration cells. So, concentration cells are those cells in which both the electrodes, this is an electrode, this is also an electrode, are made up of same material. Like you can see, it is made up of zinc, and this is also made up of zinc. And in between these two zinc electrode, we have a porous partition, right, which serve the purpose of salt bridge. And this zinc electrode is dipped into solution of its ion, that is zinc sulfate, having concentration C1, and this zinc electrode is also dipped into solution of its ion, zinc sulfate, having concentration C2. But concentration C2 of zinc sulfate present in the right hand side of the beaker is greater than concentration C1 of the zinc sulfate present in the left hand side of the container. So both the electrodes are definitely present in the same container. Both the electrodes are made up of zinc material, but they are separated from each other by porous partition, and concentration of this zinc sulfate, which is present on the right hand side, is greater than concentration of zinc sulfate C1 present on the left hand side. So such a cell in which both the electrodes are made up of same material dipped into same kind of solution, but these solutions having different concentration, separated from each other by porous partition, is called as concentration cell, or popularly electrolyte concentration cell. Right? I'm sure you are clear about it. This zinc electrode is negatively charged, and this zinc electrode is positively charged. So electron will flow, as you can see the direction, from this zinc electrode to this zinc electrode, and current will flow in the opposite direction. So such type of cells are called as concentration cells. And you can see a voltmeter also, which will give you the direction of the current, and current is flowing from this side to this side, that means from right side to left side. So you can see the needle, it is showing the direction of the current also. Simple voltmeter can be used in this. तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हैं, इनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल की हैं, दोनों जिंक मटेरियल की हैं, दोनों जिंक सल्फेट में डिप्ड हैं. एक जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरे जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन C2 है, पर जो C2 कॉन्सेंट्रेशन है C1 कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, और दोनों जिंक इलेक्ट्रोड जो हैं एक पोरस पार्टीशन से सेपरेटेड हैं. ऐसे सेल्स को हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहते हैं. और इनकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला जिंक जो है ये एनोड का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो Zn जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे और Zn2 प्लस सोल्यूशन में आ जाएगा. तो Zn/Zn2 प्लस concentration of zinc sulfate on the left hand side is C1. So we have written C1, salt bridge.
You can see we have not seen the salt bridge here like you have seen in the electrochemical cells. बच्चा electrochemical cells में we have a specialized salt bridge, but that was very difficult to handle. So instead of having that kind of salt bridge, we have a porous partition which will serve the purpose of salt bridge. Then after salt bridge, on the right hand side, the zinc coin from zinc sulfate solution will move to this zinc electrode. This zinc electrode act as cathode, and here will be reduction. Zn2 plus will gain electron because electron are coming from anode to cathode. So Zn2 plus will gain electron, and Zn2 plus from concentration C2 goes to the cathode, gain the electron and become zinc. So Zn2 plus concentration C2 slash zinc. तो ऐसे सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आगे चल के हम बताएंगे कैसे आया. ई सेल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड नहीं लिखा कहीं पे, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 अपॉन C1. तो ऊपर हमने वो वाली कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है C2 कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन C1. तो नीचे वो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो लेसर है. यहाँ तक आपको क्लियर है. तो ये जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रही है और ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड का काम कर रही है. तो ये पिक्चर आप अपने माइंड में अच्छी तरह से रख लीजिए. ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो जिंक की बनी हुई हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल. गॉट इट बच्चा? ओके, कम टू द नेक्स्ट. लाइक आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्सीडेशन जो है वो उस इलेक्ट्रोड पे होगी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी यानी C1, और उसको एनोड कहा जाएगा. जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगी, और जिसकी इलेक्ट्रोड हायर कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन में है वो कैथोड का काम करेगी. यहाँ तक क्लियर है? ओके. तो रिएक्शन क्या होंगे इसमें? रिएक्शन होंगे, एनोडिक रिएक्शन होगा कि जिंक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कैथोड पे Zn2 प्लस सॉल्यूशन में से निकल के कैथोड पे जाता है और कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. जैसे कि ये कैथोड है तो Zn2 प्लस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से निकल के इस कैथोड पे जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं. तो Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा. तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये कैथोड पे हो रहा है. ओवरऑल रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जिंक सॉलिड कट गया. इजंट इट इंटरेस्टिंग? ओवरऑल रिएक्शन में क्या बचा? Zn2 प्लस concentration C2, and on the right hand side, on the product side, we again have Zn2 plus having concentration
C1. So Zn2 plus on the left hand side and Zn2 plus on the right hand side. The only difference is the concentration. Concentration C2 is greater than concentration C1. Concentration C2 is greater than concentration C1. So if you see the overall reaction, it looked like there is no net chemical reaction. It only involves transference of electron from one concentration to another concentration. Now we have to apply Nernst equation at 298 Kelvin. We have E cell as per the Nernst equation. E cell is equal to E naught cell यानी standard electrode potential of cell minus 0.0591 upon n log C1 upon C2. C1 upon C2 क्यों लिया? C1 प्रोडक्ट की साइड पे है, प्रोडक्ट ऊपर रखना है, और C2 रिएक्टेंट की साइड पे है, C2 को नीचे रख देना। अब बचा E नॉट सेल तो जीरो ही लिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेंट्रेशन सेल में तो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो रहा है एक कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में, और नो नेट केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे भी यू हैव Zn2 प्लस एंड राइट हैंड साइड पे भी यू हैव Zn2 प्लस। टेक इट जीरो, इसको जीरो पकड़िए। ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन n log C1 अपॉन C2। ये साइन नेगेटिव आ गया ना, पॉजिटिव करना है, इन्वर्स कर दीजिए। तो ये पॉजिटिव करेंगे तो log C1 अपॉन C2 की जगह आप क्या लिख दीजिए, C2 अपॉन C1, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये एक्सप्रेशन शुरू में इस पेज पे लिख दिया था, E cell is equal to 0.0591 upon n log C2 upon C1, और ये मैंने कहा था I'll drive it later. So we have now E cell is equal to 0.0591 upon n log C2 upon C1. Got it बच्चा? Okay. Now ये हो गया कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा कॉन्सेंट्रेशन C2 डिक्रीज करेगी और कॉन्सेंट्रेशन C1 इंक्रीज करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अब कहेंगे कि आप C2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज करगी। ये जिंक सल्फेट है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2। Zn2 प्लस यहाँ पे जाई जा रहा है, तो जिंक सल्फेट C2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और Zn2 प्लस इसमें आई जा रहा है, तो C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और C2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब C2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू होती है और C1 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी होती है, शुरू होती है। A stage reaches when C1 become equal to C2. At this stage, E cell is also equal to 0. Then cell, concentration cell stops working. Okay. आगे मैं यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू, ये मैंने जिंक के साथ किया, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन सेल में गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, उसमें आपने देखा था नीचे के प्लेटिनम फॉयल के साथ प्लेटिनम फॉयल को डिप किया हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में, तो ये प्लेटिनम वहाँ से ही है, H2 गैस
उसका प्रेशर है P1 एटमॉस्फेयर स्लैश हाइड्रोजन आयन। इसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये H2 गैस है, इसका प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है। एंड सेमीकोलन या कॉमा डाल के आप इसको प्लेटिनम लिख सकते हैं। तो ये जो जिंक सल्फेट वाला कॉन्सेंट्रेशन सेल था उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कहा था। ये जो हाइड्रोजन गैस वाला कॉन्सेंट्रेशन सेल है इसको मैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहने जा रहा हूँ। तो इसमें भी जो एक्सप्रेशन है वही होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log P1 अपॉन P2। P1 अपॉन P2 बिकॉज प्रेशर P1 जो है इज ग्रेटर देन P2, तो जो ग्रेटर है उसको ऊपर लेना आपने। जैसे कॉन्सेंट्रेशन C2 ग्रेटर थी, C2 वॉज ग्रेटर देन C1, तो C2 को ऊपर लिया था, C1 को नीचे लिया था। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के साथ आप कॉन्सेंट्रेशन सेल ले रहे हैं उसमें आप P1 को ऊपर ले लीजिए, बिकॉज P1 जो है हायर प्रेशर है एज कंपेयर टू P2। तो ये हमारा था कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक और टाइप जिसको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमारे पास दो सेल हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल जो कि जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन वाला था, एक हो गया इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कह दिया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल दैट वी हैव विद अस इज कैलकुलेट EMF of following concentration cell at 298 Kelvin. Zinc sulfate, concentration of zinc sulfate is 0.05 molar given, salt bridge. Zinc sulfate, once again its concentration is 0.5 molar given, oblique zinc. तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला जो कॉन्सेंट्रेशन सेल में, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन इक्वेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का न्यूमेरिकल है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी जिंक सल्फेट है और राइट हैंड साइड पे भी जिंक सल्फेट और जिंक है। तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड तो नहीं है, सेम इलेक्ट्रोड है। जब सेम इलेक्ट्रोड होगी तो आपको फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन सेल का अप्लाई करना, ना कि नॉन इक्वेशन का। ओके, तो EMF निकालना है। ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 upon n log C2 upon C1. तो the concentration C2 is this one because this is larger 0.5 and this is C1. Put the values. C2 की concentration है 0.5 और C1 की concentration है 0.05। ठीक है, और n की वैल्यू 2 आई है बिकॉज आपने जो रिएक्शन देखा था जिंक और जिंक सल्फेट का, उसमें आपने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिंक से जिंक 2+ बनने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, 2 लॉस हो रहे थे, 2 ही गेन हो रहे थे। एक्चुअली इनफैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 आएगा। तो आप 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर 0.02955 वोल्ट। दिस योर आंसर, दिस योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो
वैसे न्यूमेरिकल इसके दिए तो नहीं हुए, पर रेफरेंस बुक में है, तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग अप। एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो इसमें कहा गया एक सेल है, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना हुआ है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में डिप है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ मोलर है। अब उसने कहा कि आप जो दूसरा पार्ट है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। गैस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईएमएफ जो है सेल की यानी ई सेल 0.118 केल्विन पे गिवन है। तो अब कैसे पता चला कि जो 10⁻⁻⁶ है उसे C1 लेना है? उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है यानी एनोड, तो एनोड वाली साइड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 होगी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 होगी। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1। और हाइड्रोजन प्लस है तो इसका जो रिडक्शन रिएक्शन होगा डेफिनेटली उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। तो 0.0591 अपॉन 1 नॉन इक्वेशन का आपने फॉर्मूला किया हुआ है, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है, log C2 अपॉन C1। C1 हमें गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको इसके नीचे ले जाइए, ठीक है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा और क्या आ गया, log C2 अपॉन 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू 2। तो निकालना हमें C2 है, तो log इस तरफ चला जाएगा, एंटी log 2 हो जाएगा। एंटी log 2 क्या होता है, 10⁻²। जब किसी पॉजिटिव वैल्यू का और उसमें कोई डेसिमल भी इन्वॉल्व नहीं है उसका एंटी log देखना होता है, तो उसको पावर बना लीजिए, एंटी log 2 इज इक्वल टू 10⁻² हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, C2। यू हैव टू फाइंड आउट C2। C2 निकालना है तो 10⁻⁻⁶ को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻² इंटू 10⁻⁶ तो कितना आ गया, 10⁻⁻⁴। अब C2 कितना निकला, 10⁻⁻⁴, which is larger, bigger as compared to C1, which is more negative, that is 10⁻⁻⁶. This clearly show कि C2 is concentration of H plus ion in right hand side of the cell where cathode is dipped. The concentration is larger as compared to concentration C1, right? ये concentration cell हमारा पूरी तरह से complete हुआ और इसके numericals भी, ठीक है बच्चा। तो I hope you understand the lecture nicely. Next lecture shall be taken up tomorrow. Please go through lecture once or twice. I have taken up lecture very at very moderate speed so that you can understand the contents nicely. You don't feel any difference between online and offline classes. Okay? So, shall we call it a day? Thank you. Have a nice day.
Love you all.